إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لحب الخير لشديد. وقال سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہماری مصلحتوں کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے. جو بھی تقاضے تھے اللہ عز و جل نے انہیں پورا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اتار کر ہمیں وہ سارے احکامات، وہ ساری پابندیاں، وہ سارے قوانین دے دیے جن کی روشنی میں ہم اور آپ زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا توشہ سامان سفر لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں سے زندگی کے ہر گوشے میں، ہر موڑ پر اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے جو کچھ بھی انتظامات ہم سب بندوں کے لیے ضروری تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پورے طور پر ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا. اپنی کتاب قرآن کریم اتار دی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس کی شرح و بیان کا، اس کی عملی تطبیق کا اور اس کے آئیڈیل کا انتظام فرما دیا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت اسلامیہ میں پوری کی پوری رہنمائی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کسی طرح کا کوئی کسر اللہ عز و جل کی شریعت پہ یا نقص موجود نہیں ہے. ہدایت کا مسئلہ، ارشاد کا مسئلہ، رہنمائی کا مسئلہ تمام ہے، کمال کو پہنچا ہوا ہے. مسئلہ اور مشکل ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ہمارے اور آپ کے تصرفات کا ہے، ہمارے اور آپ کے ایکشن کا ہے، ہمارے اور آپ کے عمل کا، ہمارے اور آپ کے رویے کا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے نظام پر کس حد تک چلتے ہیں اور کہاں اس سے تجاوز کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے حصے میں داخل شامل کر لیتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ہماری اور آپ کی زندگی، یہ زندگی جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں بتلا رہا ہے. یہ آزمائش، ابتلا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو، زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو ہمارا عمل، ہمارا کرتوت دراصل ہمیشہ آزمائش میں، ابتلا کی زد میں ہے، امتحان گاہ میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس کا صلہ بدلہ حساب کتاب کے بعد جنت جہنم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے گا. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری اور آپ کی سوچ کا، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا تصرف کیا ہے، ہمارا رویہ اور عمل کیا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ودیت کردہ، عطا کردہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں ہمیں عطا فرمائی،
ظاہر है कि कोई भी चीज जो हमें मिली है ये हमारी अपनी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहैसियत मालिक और रब, और हमारी हैसियत गुलाम और बंदे की है। उस मालिक ने, उस रब ने हमें पैदा कर दिया, जमीन पर भेज दिया, दुनिया में भेज दिया। जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रहने बसने के असबाब और वसाइल का इंतजाम कर दिया। इस मकसद के लिए जो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी का तकाजा बनाया है, अल्लाह ताला ने वो चीजें हमें अता फरमा दी, और इसलिए दे दी कि आप जब तक जिंदगी गुजारें, इस दुनिया में रहें, जिए, तब तक उस पर अमल, उससे इस्तेमाल करें, और उसकी रोशनी में, उसकी मदद से और उसके सहारे से उसका इस्तेमाल करके जिंदगी गुजारें। और फिर जब हम दुनिया से जाएंगे तो फिर वो पलट करके वो सारी की सारी नेमतें, सारे के सारे असबाब, चीजें, वसाइल सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट जाएंगे। हमारे पास माल है, ये हमारा अपना नहीं है, हकीकत में माल अल्लाह तबारक व तआला का है। अल्लाह तबारक व तआला ने वदीयत कर दिया है, कुछ दिन के लिए दे दिया है, ये लो, इसे इस्तेमाल करो। किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, उसकी मशीयत है, उसकी मर्जी है, उसकी हिकमत है, वो खूब जानता है कि किसको कितना देना चाहिए, कम देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ भी अता फरमाया है, हमें सेहत दी है, हमें माल दिया है, हमें दौलत दी है, हमें असबाब जिंदगी अता फरमाए, हमें खुशहाली अता फरमाई है, हमारे पास औलाद है, हमारे पास बीवी है, हमारे पास जिंदगी में जितने भी असबाब हैं, ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक महदूद मुद्दत तक के लिए वदीयत, एक टाइम के लिए, एक खास टर्म और पीरियड के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। ये लो, इस्तेमाल करो इसे, ये है नहीं तुम्हारा हमेशा हमेश के लिए, तुम असल में मालिक नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला ही तमाम चीजों का मालिक है। और हम खुद भी अपनी जिंदगी की मुद्दत मुकम्मल करके अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे, और जो असबाब हैं, ये दुनिया फना हो जाएगी, फिर सब चीजें, सारी की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ही के। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब हमारी और आपकी जिंदगियों में जो असबाब वदीयत किए गए हैं, उन असबाब के ज़िम्न में एक बहुत बड़ी चीज है माल, दौलत, असबाब जिंदगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। कुरान करीम की आयत में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में जगह जगह माल का तज़किरा है, माल की आजमाइश का तज़किरा है, माल की फितने का तज़किरा है, माल से इंसानी जिंदगी की मसलहतों का क्या ताल्लुक है, उसका तज़किरा है। इस आजमाइश में अगर कामयाब हो गए तो क्या मिलेगा, उसका तज़किरा। इस आजमाइश में अगर नाकाम हो गए तो इस दुनिया में अंजाम क्या होगा, आखिरत में अंजाम क्या होगा, उसका तज़किरा। और ये बता दिया जा रहा है ये माल आपका, हमारा नहीं है, असल में अल्लाह तबारक व तआला का है। मुस्तखलफीन फीह, तुम्हें ये माल दिया गया दुनिया में, जिंदगी में, दुनियावी जिंदगी में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दिया। अब इस दुनियावी जिंदगी में तुम एक जानशीन के तौर पर हो, अल्लाह ने दिया, तुम इस्तेमाल करो। तुम जाओगे, तुम्हारे बाद वाले इस्तेमाल करेंगे, वो मर जाएंगे, उनके बाद वाले इस्तेमाल करेंगे, यहां तक कि आखिरी के फर्द के मर जाने के बाद वो फिर सब अल्लाह तबारक व तआला ही का है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ये जो मसला है माल की नेमत का, या माल के फितने का, या माल के अजाब का, या उसकी आजमाइशों का, ये तो मौजू काफी वसी है, लंबा चौड़ा मौजू है। लेकिन मैं 2-3 बातें अपनी जात को नसीहत करने के लिए और आप तमाम भाइयों तक ये कलाम की आयतें अल्लाह तबारक व तआला की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और कुछ सलफ की सीरत के वाकयात अगर मौका रहा तो उसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दौर में, जो मादियत का दौर है, जगह जगह मादियत के शोले उबल रहे हैं, दुनिया मादियत की तरफ भाग रही है, माल की हवस, माल की लालच ने इंसान को न जाने कहां तक दौड़ा रखा है। इंसान ने उसके पीछे सब चीजों को छोड़ दिया है, सबसे आगे माल है, उसके पीछे नमाज, उसके पीछे इबादत, उसके पीछे ईमान, उसके पीछे बाल बच्चे, उसके पीछे हक, उसके पीछे हलाल, उसके पीछे पाबंदियां, उसके पीछे मुस्तहब्बात, नवाफिल, सारी चीजें पीछे। सबसे आगे क्या है भाई? सबसे आगे माल है। नाराज होने की बात भी नहीं है, हमने माल के चक्कर में नमाजों को तो डिले किया है बार बार, लेकिन मेरे भाइयों, नमाज को वक्त पर अदा करने के लिए अपनी दौलत को, अपनी जॉब को, अपनी ऑफिस को कितनी बार डिले किया है। एक थोड़ा सा जायजा लेकर के देख लोगे तो अंदाजा लग जाएगा
میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہر آدمی غور کر کے سوچ سکتا ہے کہ میری اپنی زندگی کا رویہ کیا ہے, میں کیا کرتا ہوں. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے, بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اصل مقصد پیدائش یہ ہے. اب پیدائش کا مقصد عبادت ہے, لیکن عبادت کرنے کے لیے جینا ہے. جینے کے لیے مال بھی چاہیے, جینے کے لیے روزی بھی چاہیے, کھانا پانی کپڑا لباس چھت سب کچھ چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ اسباب کی ضمن میں مال بھی عطا فرمایا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو مال کی محبت جو ہماری اور آپ کی سوچ میں, ہمارے اور آپ کے دلوں میں, ہماری اور آپ کی میرے بھائیوں طبیعت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے. یہ تمہیں بہکانے والی چیزوں میں سے, یہ تمہیں غفلت میں ڈالنے والی چیزوں میں سے ہے. یہ مال تمہیں تمہاری نماز سے غفلت میں ڈال دے گا. یہ مال تمہیں تمہارے روزے سے, تمہاری زکات سے, تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غفلت میں ڈالنے والی چیز. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی صراحت سے فرماتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ فرماتا ہے ایمان والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈال دے. عن ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. یہ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. میرے بھائیو, حضرت موسیٰ علیہ السلام, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری ذکر کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. میرے بھائیو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نماز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر قرآن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پورا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا زبان سے کہنے والی چیز کے ذریعے سے ہو, ہاتھ پیر سے کی جانے والی چیز ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے کام دین و شریعت کے اندر ہیں وہ سب کے سب ذکر میں شامل ہیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو, مسلمانوں, مومنوں, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد غفلت میں نہ ڈال دے, غافل نہ کر دے. عن ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, یاد رکھنا اگر ایسا کیا تو جو ایسا کرے گا کہ مال غفلت میں ڈال دے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی حق حلال سے غفلت میں ڈال دے جس کو, اس کا مال اس کی اولاد, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو یاد رکھو یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان, تنبیہ کی جا رہی ہے. ہم مسلمانوں کو, مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے, تنبیہ کر رہا ہے, آگاہ کر رہا ہے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یاد رکھو تمہاری مال, تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم لوگ میراث کو, اللہ اکبر, أَكْلًا لَمًّا, خوب کھاتے ہو میراث. یہ بھی مذمت میں تفسیر اٹھا کر کے دیکھو. مفسرین سلف نے ایک تفسیر یہ کی ہے کہ جو جاہلیت میں طریقہ چلتا تھا کہ لوگ عورتوں کا حق کی وراثت ہڑپ کر جایا کرتے تھے, کھا جایا کرتے تھے. بیٹی کا حق غائب, بہن کا حق غائب, ماں کا حق غائب, بیوی کا حق غائب. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, میراث کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو. اتنی محبت, اتنی محبت کہ ساری محبتوں کو اس کے پیچھے ڈال دیتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ انسان مال کی محبت میں سخت واقع ہوا ہے, بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو مال کے بارے میں ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے, ہمارا اور آپ کا جو رویہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیان کر رہا ہے. اس لیے نہیں بیان کر رہا ہے کہ ہم کو بتا دے کہ تمہارے بارے میں پتا ہے ہمیں, اس لیے بتا رہا ہے کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالداری کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے تھے جیسے فقیری اور محتاجگی کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے دوسری ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی کو مال کم دیا, کسی کو کچھ زیادہ دے دیا, کسی کو اس سے زیادہ دے دیا, کم بیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں روزی کو بانٹ رکھا ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کے لیے, کھلی چھوٹ دے دی جاتی, جتنا چاہو لے لو,
वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फिल अर्ज़। तो ये अल्लाह ताला के बंदे इस रुए जमीन पर फसाद फैलाते, जुल्म की इंतहा कर देते। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि जितना अंदाजा से वो चाहता है कम देना, उससे कम देना, उससे ज्यादा देना और ज्यादा देना, एक मिक़दार अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के मुताबिक तय है, उसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला देता है, उतारता है रोजी को। इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर। यकीन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के बारे में खूब जानने वाला है और उनके हालात को, उनके रवैयों को खूब देखने वाला है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, ये माल, आज माल का मसला इसलिए छेड़ा जा रहा है बार बार, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत यानी कुर्ब क़यामत के फितनों का जब तज़किरा किया तो जितनी कसरत से माल के फितनों का जिक्र किया, बार बार जिक्र किया, शायद किसी और फितने का जिक्र नहीं किया होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का फितना ही माल है, मेरी उम्मत का फितना ही माल है। हर उम्मत के लोग किसी न किसी आजमाइश में रहते हैं, लेकिन मेरी उम्मत का फितना क्या है? आजमाइश, सबसे ज्यादा आजमाइश किसमें होगी? मेरी उम्मत की माल में होगी। इस माल की आजमाइश में पड़ेंगे मेरी उम्मत के लोग बहुत ज्यादा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक हालात के अंदर जो बिगाड़ है, हालात के अंदर जो फसाद आता जा रहा है, आज देख लो माल का निजाम दुनिया में कैसा चल रहा है। क्या हाल है हमारे और आपके कारोबार का, क्या हाल है दुनिया के कारोबारी नेटवर्क का। मुल्क की बात या पूरी दुनिया के मामलात को अगर आप अपने सामने रखें तो आप हैरान हो जाएंगे किस कदर उसके अंदर बेहतियाती, बदउनवानी, हराम हलाल की मिलावट, मेरे भाइयों, गरर, धोखा, गिश, खियानत, सूद, रिश्वत और उसके अलावा बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम हलाल रास्ते से कमाएं, अल्लाह की रिजा के रास्ते से कमाएं और अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और उसकी खुशनूदी की राहों में खर्च करें। करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के से हम सामने पेशी होगी, अल्लाह तबारक व तआला पूछताछ करेगा, बाज पुरस करेगा। उन सवालात में है तो 5 सवालात, लेकिन 5 में से 2-3 सवालात अलग, 2 सवालात मुस्तकिल तौर पर माल के सिलसिले में होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया वो अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा। इंसान से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, 2 सवाल पूछा जाएगा। मिन ऐन इक्तसबहु, अल्लाह के बंदे ने माल कहां से कमाया, कमाई का रास्ता हलाल का था कि हराम का था। और ये तो हलाल हराम की बात हम कह रहे हैं, असलाफ की सीरत का, उम्मत के सल्फ सहाबे किराम और ताबईन का और बात के अइम्मा का, अगर मेरे भाइयों जिंदगियों का अगर आप मुताला करके देखें तो आपको हैरानी होगी कि हराम हराम तो जाने दो मेरे भाइयों, अदना सा भी शुबह हो जाए तो उन्हें गवारा नहीं होता था। वो कहते थे इतना शुबहे वाला माल हमें हासिल नहीं करना है, शुबहे वाली कमाई नहीं चाहिए, डाउट वाली कमाई, हराम भी हो सकता है, ऐसी इनकम भी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि इतने से पेट तो भर जाएगा, पेट की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, वो उतना मशकूक माल न मिले, एक दिन फाका कर लेंगे, गवारा है, भूख बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन उस मशकूक माल को अगर ले लिया, उस इनकम को ले लिया और हराम निकला तो कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दुनिया की भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आखिरत की जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, ये सोच थी हमारे असलाफ की, इस कदर बेएतदालियां हैं, इतने सारे धोखे हैं माल की इनकम के आजकल। और खर्च करने का मसला भी बड़ा नाजुक है, लोग कहां कहां खर्च करते हैं, कैसे कैसे खर्च करते हैं मेरे भाइयों, ये अपने आप में एक सवाल है, ये तबसरा करने का मौका नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन मौजू बहुत तवील है। कौन सा ऐसा मैदान है जहां हमें खर्च करना चाहिए और हम नहीं करते, या कमा हक नहीं करते, और कहां नहीं खर्च करना चाहिए वहां हम अपनी शोहरत, नाम, दुनिया या अपनी जहालत और लाइल्मी की बुनियाद पर बेदरेक खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने का काम खर्च कमाई में गलत करके भी करते हैं और गलत जगह खर्च करके भी अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर फिक्र थी अपनी उम्मत के बारे में। मेरी उम्मत के लोगों, मुझे बहुत डर है, एक दौर ऐसा आ जाएगा मुसलमान तुम लोगों के ऊपर ये हाल आ जाएगा, ऐसी हालत आ जाएगी, इंसान को परवाह नहीं होगी कि इनकम कहां से कर रहा है,
ला युबालिल मरउ मिन ऐन अखज़ल माल हल अखज़हु मिन हलालिन अम अखज़हु मिन हराम। इंसान परवाह नहीं करेगा कि इनकम कहां से कर रहा है, माल कहां से कमा रहा है, क्या उसकी आमद का जरिया हलाल का है या हराम का है। आने की फिक्र करेगा, इनकम की फिक्र करेगा, बैलेंस की फिक्र करेगा। ये मसला बड़ा पेचीदा है मेरे भाइयों। तो एक सवाल तो यह है कि माल कमाया कहां से, और दूसरी चीज क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया व मिन ऐन इक्तसब फीमा अनफक़ा, और माल खर्च कहां किया उसने, माल खर्च कहां किया, ये भी एक सवाल है अपने आप में। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर माल में जो अल्लाह ताला का माल है, ये माल हमने शुरू में अर्ज किया कि माल वदीयत है, टाइम के लिए, एक खास टाइम के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, एक खास टर्म के लिए हमें अल्लाह ने वदीयत कर दिया है। हम हमेशा के लिए इस माल के मालिक नहीं है, हम लाए कहां से है ये माल, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है, अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का तक़सीम करदा है, जो अपनी मशीयत के मुताबिक कम या ज्यादा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यतखव्वज़ूना फी मालिल्लाहि बिगैरि हक़्क़िन फलहुमुन्नारु यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, इतनी अजीमुश्शान हदीस, इतना अजीमुश्शान पैगाम। बल्ले बात हो मेरे भाइयों, मुसलमानों, आजकल के हालात में इतने सारे फितने हैं माल के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को याद रखो। आपने फरमाया था, जो लोग अल्लाह के माल में बेजा तसर्रुफ करते हैं, इन्नल्लज़ीना यतखव्वज़ूना फी मालिल्लाह, अल्लाह के माल में, माल किसका है, अल्लाह तबारक व तआला का, जो अल्लाह तबारक व तआला के माल में बेजा तसर्रुफ करते हैं, बेहक नाहक तसर्रुफ करते हैं, फलहुमुन्नारु यौमल क़ियामा, उनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम की दहकती भड़कती हुई आग, क़यामत के दिन उनके लिए जहन्नम है, क्योंकि अल्लाह ताला के माल में नाहक तसर्रुफ करते हैं, उसको हासिल करने में नाहक रास्ते से और उसको खर्च करने में नाहक रास्ते से, हलाल हराम की तमीज खत्म कर देते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, शुबहात से नहीं घबराते हैं। इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है, दोनों के बीच में कुछ चीजें डाउटफुल हैं, शक शुबहे वाली हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल लेना है, हराम छोड़ देना है, और शक शुबहे वाली चीजों को भी हराम से मिला करके उसे भी छोड़ देना है। जो अपने आप को शुबहे वाली चीजों से बचा लेगा, वो अपने दीन को बचा लेगा, अपनी इज्जत को बचा लेगा, अपनी आबरू को बचा लेगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी हदीसें, मैंने सोचा कि कुछ हदीसें मजीद अपने आप को नसीहत करने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए अर्ज करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे भाइयों, और बातें इस तरह की बहुत सारी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस्नतानी यकरहुहुमा इब्नु आदम, माल के बारे में हमारा तरीका कि हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हलाल हराम की तफरीक करके सब हड़प कर जाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं, जिंदगी जीने का ढंग सिखा रहे हैं, फिक्र दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते, इस्नतानी यकरहुहुमा इब्नु आदम, दो चीजें ऐसी हैं जिनको आदम का बच्चा नापसंद करता है। हम लोग आदमी दो चीजें ऐसी हैं जिनको नापसंद करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मौत, एक चीज तो मौत है, मौत, हम मरना नहीं चाहते हैं, लंबी जिंदगी चाहते हैं, हराम हलाल के साथ या अच्छाई के साथ, भलाई के साथ, नेकी के साथ, बहरहाल हम लंबी जिंदगी चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, सबसे बेहतर आदमी कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसकी उम्र लंबी हो और जिसके आमाल अच्छे हों। सबसे बुरा आदमी कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और उसके आमाल गंदे हों, आमाल बुरे हों। तो याद रखें, लंबी जिंदगी नेमत नहीं है, लंबी जिंदगी अगर नेक अमल के साथ है, अल्लाह की रिजा के साथ है, तब तो वाकई नेमत है, वरना ये अजाब है, निकमत है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तरह से, मेरे भाइयों, एक तरफ से मोहलत दी जा रही है, लंबी जिंदगी और गुनाहों में डूबी हुई जिंदगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो चीजें, एक चीज मौत को आदमी नापसंद करता है, वल मौतु खैरुल लिल मुमिन मिनल फितना, फलसफे जिंदगी समझो,
जिंदगी का फलसफा समझो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमको आपको जिंदगी का सलीका सिखा रहे हैं। आदम का बच्चा मौत को नापसंद करता है, जबकि एक मोमिन के लिए मर जाना फितने में पड़ जाने से बेहतर है। जिंदगी के इस फितने से बचकर इंसान अगर दुनिया से चला जाए तो ये मोमिन के हक में बेहतर है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया एक मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। मेरे भाइयों, इसका मतलब यह है कि जहन में, दिमाग में हमेशा मौत याद रहनी चाहिए। फितने से बचते रहो, मौत के लिए तैयारी हमेशा रहे। अल्लाह तबारक व तआला मुझको, आपको, सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, आदम का बच्चा मरना नहीं चाहता, वल मौतु खैरुल लिल मोमिन मिनल फितना, जबकि मर जाना, मौत आ जाना एक मोमिन के हक में, फितने में, आजमाइश में, दुनिया की झंझटों में हराम हलाल की तमीज खत्म कर दे, अल्लाह ताला की के दीन की अहकाम की पाबंदी न कर सके, इबादत से ग़फलत बरते, इस फितने से कहीं ज्यादा बेहतर है मोमिन के लिए मर जाना। दूसरा नुक्ता क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह किल्लतुल माल, माल नहीं किल्लतुल माल, और माल की किल्लत, थोड़ा माल, कम माल, आदम का बच्चा इसे नापसंद करता है। उसको रात आता है भाई, तब तो आसमान की तरफ उठा उठा करके मुंह देख, सर उठा करके देखते हैं, अरे उसके पास इतना ज्यादा है, मैं तो कुछ नहीं कर सका अभी तक, चलो मेहनत करो जल्दी से। हलाल ये है, हराम ये है, मौलवियों के फतवे हैं, खुतबे हैं, दर्स है, किताबें हैं। अरे ये मौलाना लोग बार बार हराम हलाल, हराम हलाल के फतवे, अरे जिंदगी में पीछे रह जाओगे, आगे बढ़ो, हलाल हराम की तमीज छोड़ दो, खत्म करो। कब तक हलाल हराम करते रहोगे? दुनिया पता नहीं कहां पहुंच गई, आप अभी तक यहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया आदम के बच्चे को किल्लतुल माल, थोड़ा माल पसंद नहीं, वयकरहु किल्लतल माल, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा, मिल गया जितना चाहते थे और ऊपर देखा और चाहिए, नीचे वाले को नहीं देखना है, ऊपर की तरफ देखना, ये हमारा रवैया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्जुरु इला मन अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन फौककुम, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे तो जो नेमत अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है तुम उसकी कदर करोगे, ना कदरी नहीं करोगे। ऊपर वालों को देखोगे तो अपनी नेमत को हकीर समझोगे, अपने माल को हकीर समझोगे, अपनी दौलत को, जो भी अल्लाह ने तुमको कम ज्यादा दिया है उसे हकीर समझोगे, मामूली समझोगे। इसलिए तुम नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। लेकिन हालत क्या हमारी? किल्लतल माल, कम नहीं चाहिए, बहुत चाहिए। कितना चाहिए? एक वादी भर सोना नहीं काफी, दूसरा वादी नहीं काफी है, तीसरी वादी भी चाहिए, वो भी मिल जाए तो चौथी चाहिए। मुसलसल लौकान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसा, और ये पेट भरने वाला नहीं है जब तक कि मर के मिट्टी में दफन न हो जाए, कब्र के हवाले न हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और आदम का बच्चा माल की किल्लत को पसंद नहीं करता, ना पसंद करता है। अल्लाह के नबी ने उसका भी फलसफा बतला दिया। हमारी और आपकी सोच क्या होनी चाहिए? मोमिन की जिंदगी में ये रवैया आ जाए तो मसले हल हो जाएंगे। करप्शन, खयानत, रिश्वत, सूद, 2 नंबर 4 नंबर गलत सलत कागजात की बुनियाद पर दाढ़ियां मार करके, खयानत करके कमाई करने वाले काम इंशाअल्लाह तबारक व तआला नादिर बाकी बचेंगे, बंद हो जाएंगे। लेकिन मसला ये कि हमारे और आपके पास जिंदगी जीने का सलीका कम होता जा रहा है। हम यूरोप, मगरिबियत, कानूनियत, फिरौनियत की तरफ भाग रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने क्या वकिल्लतुल माल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जवाब, वकिल्लतुल माल अक़ल्लु लिल हिसाब। नहीं समझता आदम का बच्चा, आदमी को समझ भी नहीं आता, माल अगर कम है, जिंदगी गुजर जा रही है, तो ये माल कम है तो कल क़यामत के दिन हिसाब भी कम देना पड़ेगा। वकिल्लतुल माली अक़ल्लु लिल हिसाब, माल की किल्लत कम होना कल क़यामत के दिन हिसाब में भी कमी का सबब होगा। जिसको अल्लाह जितना दिया होगा उतना सख्त इम्तिहान से गुजरेगा वो आदमी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उसकी बहुत सारी बातें हैं और बड़ी अजीम शान। उसका एक टुकड़ा मुझे याद आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में
آپ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. آپ نے فرمایا ابو ذر یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ احد پہاڑ. روایت مسلم کی ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ دیکھتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی. لبیک یا رسول اللہ. ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے نا، مجھے ایک ذرہ بھی تمنا نہیں ہے کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور وہ سارا سونا دینار کی شکل میں میرے پاس اکٹھا ہو جائے اور اس کے بعد 3 دن بھی گزر جائیں اور 1 دینار بھی اس میں سے میرے پاس باقی بچے، میں سب بانٹ کر کے اللہ کی راہ میں ختم کر دوں گا. 1 دینار بھی باقی نہیں چھوڑوں گا. دنیا میں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. میں اللہ کے بندوں کو، مستحقین کو دے دوں گا. میں مجھے 1 دینار بھی بچانا گوارا نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک نصیحت فرمائی، مجھ کو، آپ کو، ساری امت کو، آدمیوں کو، سب کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا الاکثرون هم الاقلون یوم القیامہ. جو دنیا میں بہت زیادہ کشادگی اور مال و دولت کی فراوانی میں ہے، کل قیامت کی دن اجر و ثواب میں سب سے کم ہوں گے. الاکثرون فی الدنیا الاقلون فی یوم القیامہ. جو دنیا میں کثرت مال، کثرت اسباب میں زندگی گزار رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اجر و ثواب نیکی کے اندر سب سے اقل ہوں گے، سب سے کم ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ہی زیادہ آزمائش، اتنی ہی زیادہ پوچھ تاچھ، اتنا ہی زیادہ باریکیاں. اس کے پاس اسباب زیادہ ہے، اس کے پاس مسائل بھی بہت زیادہ ہے. حساب و کتاب کا معاملہ بہت نازک ہے. اللہ کے نبی رسالت والسلام نے ایک استثناء فرمایا، الا سنو کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ سوائے ان مالداروں کے، ان کشادگی والوں کے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کثرت مال عطا فرمایا. الا ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا. الا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا کریں، دونوں ہاتھوں سے ایسا کریں، دونوں ہاتھوں سے ایسا کریں. اپنی دائیں طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا، بائیں طرف اشارہ فرمایا، پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا، سامنے تو ہے ہی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دائیں طرف سے آنے والوں کو دے دے، بائیں طرف سے آنے والے مستحقین کو دے دے، پیچھے سے بھی خرچ کرے، آگے سے بھی خرچ کرے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. لیکن ابو ذر ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں میری امت میں، بہت تھوڑے، معمولی ہے ایک دم. قلیل ما، قلیل نہیں فرمایا، قلیل ما، بہت بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے. ہم لوگ اپنی مثال میں کہتے ہیں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. میرے بھائیوں مشکل ہے مسئلہ پیچیدہ ہے. ہمارا مال، ہماری دولت عیش و مستی کے لیے نہیں ہے. کمائی کا راستہ جو چاہے اختیار کر لیں، بس اچھا اسٹیٹس ہو جائے، نام ہو جائے، دنیوی معیار کے مطابق ہمارا رہن سہن ہو جائے، ہمارا گھر ہو جائے، ہماری پراپرٹی ہو جائے، ہماری گاڑیاں ہو جائیں، ہماری شادیاں ہو جائیں اور ہم مست و مگن ہو جائیں کہ ہم دنیا میں سب سے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں اس محاسبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اور بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک نقطہ یاد رکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. قارون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی آدمی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی. موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، اللہ کے کلیم، اور قارون آپ کی قوم کا، میرے بھائیو، آپ کا چچا زاد بھائی، باغی، دین کا، اللہ کا دشمن اور دولت کے نشے میں بالکل آزاد. کیا نصیحت کی گئی تھی اس کو؟ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے نا، کھانے کے لیے جو چاہیے حلال، پہننے کے لیے جو چاہیے حلال، پینے کے لیے جو چاہیے حلال، اور زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو حلال اور اعتدال کے ساتھ
اور मारूफ तरीके से है वो अपना हिस्सा दुनिया का ले लो, उसे मत भूलो। बकिया वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारुल आखिरा, बकिया अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जब बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई है माल की, उसे अल्लाह तबारक व तआला की रिदा के लिए आखिरत में अपनी कामयाबी के लिए खर्च कर दो। मेरे भाइयों, खजाना कितना था मालूम आपको? इतना बड़ा। वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहाहु लतनूउ बिल उसबति उलिल कुव्वा। मुफस्सिरीन ने लिखा है 60 खच्चरों पर लद कर उसके खजानों की चाबियां ले जाई जाती थी, उस पर लाद करके। और इतनी बताते हैं मुफस्सिरीन, लिखा है कि उंगली के बराबर थी एक चाबी उंगली के बराबर, जैसे आजकल की चाबियां होती है, लेकिन इतनी चाबियां, इतना खजाना, सोना भरा हुआ, चांदी भरा हुआ, सोना भरा हुआ, चांदी भरा हुआ, और सब पे ताले लगे हुए हैं। चाबियां ऐसी हैं, इतने खजाने हैं, इतनी तिजोरियां हैं कि उसकी चाबियां 60 खच्चरों की पुष्ट पर लाद करके ले जाई जाती थी। इतना नशा, इतना, अल्लाह अकबर। बहरहाल वो तो बात लंबी हो जाएगी, कारून का मसला भी नहीं। मसला असल क्या है? वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारुल आखिरा, जो कुछ अल्लाह ने तुमको हमको अता फरमाया है, उसके जरिए से अल्लाह को और यौम आखिरत को तलाश करो, अल्लाह को हासिल करो, अल्लाह की रिदा हासिल करो और आखिरत के दिन की कामयाबी हासिल करो। ये सबसे बुनियादी मसला है मेरे भाइयों। तो दो बातें याद रहें, इनकम का रास्ता हलाल का, अल्लाह की रिदा का होना चाहिए, और खर्च करना अल्लाह की राह में, अल्लाह को राजी करने की राहों में होना चाहिए, खैर के रास्तों में खर्च करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये नुक्ता हमें हर पल याद रहे, क्योंकि ये दौर फितनों का दौर है। माल के फितने सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, यहूदियत के हाथ में, ईसाइयों के हाथ में, गैरों के हाथ में आलमी बैंकिंग का और बिजनेस का, ट्रेडिंग का निजाम है। मेरे भाइयों, ऑफर के नाम पर अलग अलग मसाइल, और हम न जाने कहां कहां लालच में, हवस में, हराम में पड़ जाते हैं मेरे भाइयों। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस माल के फितने से इस दौर में बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें। और आखिरी एक बात और अर्ज कर दूं, मैं भूल गया, असल में वक्त की किल्लत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है तो आपने सुनी, मैं एक नमूना पेश करूं कि हमें माल के मामले में एहतियात कितना होना चाहिए। एक नमूना बस, सही बुखारी की रिवायत में हजरत उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं। हम जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान और सुन्नत के हुक्म की रोशनी में जो मुसलमान थे, खास तौर पर वो मुहाजिरीन, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, वो शुरू के मुहाजिरीन जिन्होंने बड़ी आजमाइशों से अल्लाह तबारक व तआला के दीन को बचाया और ईमान को बचा करके मक्के से मदीना पहुंचे, अपनी जान को हथेली पर, माल को जाये किया, अपनी कारोबार को जाये किया, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके अल्लाह का दीन बचा कर लेकर के मदीना पहुंच गए। उन मुहाजिरीन को खास तौर पर बैतुल माल से मेरे भाइयों वजीफा दिया करते थे। ये लो, बड़ी कुर्बानियां आप लोगों की है, आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हक रखा है। खुलासा बताता हूं मैं, जो मुहाजिरीन थे उन सब के लिए 4-4 हजार, रिवायत में दीनार दिरहम का जिक्र नहीं है, जो रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसमें 4000 का जिक्र है, दिरहम और दीनार का जिक्र नहीं है, इसलिए मैं भी अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो दिरहम भी हो सकता है, दीनार भी हो सकता है। 4000, इनको 4000, इनको 4000, इनको 4, सारे लोगों को 4-4 हजार। उन्हीं मुहाजिरीन में अब्दुल्ला बिन उमर भी थे, जो खुद उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे। उनको कितना देते थे भाई? उनको 3500 रुपया कम। लोगों ने कहा अजीब, अमीरुल मोमिनीन क्या मसला है, आप सबको 4-4 हजार दे रहे हैं, ये भी तो मुहाजिरीन में से है आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, आपने इनको 500 कम करके क्यों दिया? 3500 आपने इनके लिए क्यों मुकर्रर किया? अल्लाहु अकबर। जवाब क्या था मालूम आपको? वो जवाब असल हमारे मकसद का है, जिसके लिए हमने वाकया पेश किया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर ये खुद हिजरत करके मक्का से मदीना नहीं आए थे, उस वक्त वो बच्चे थे, अपने माँ बाप के साथ में हिजरत करके आए थे, इसलिए वो मुस्तकिल मुहाजिर की हैसियत से नहीं माने जाएंगे, इसलिए उनको हिस्सा 500 कम दिया जा रहा है। बैतुल माल है,
मुसलमानों का हक है उसके ऊपर, लेकिन वरा माल को खर्च करने में एहतियात अमीरुल मोमिनीन ने ऐसे मौके पर सहाबा नहीं, मुहाजिरीन सहाबा और आम नहीं कोई, मकाम में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको उलमाए सहाबा, जिनको जाहिदीन सहाबा में, इनको सीरीज में मुक्तरीन सहाबा में उनका नाम आता है, अब्दुल्ला बिन उमर को अपने बेटे को 500 दिरहम कम या 500 कम, और जवाब में क्या कहा, खुद हिजरत करके नहीं आए थे बल्कि अपने अबवैन, अपने बाप मां के साथ में आए थे। असल मुहाजिर ये नहीं है बल्कि ये माँ बाप के बीच में आए थे, इसलिए इनको मुस्तकिल तौर पर नहीं शुमार किया जाएगा। 4000 के बजाय 500 कम करके दिया जाए। 4000 बाप के लिए, 4000 मां के लिए है, लेकिन इनके लिए 500 कम। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी ने इस रिवायत को अल-वरा के नाम से जिक्र किया है कि माल खर्च करने में एक मुसलमान को किस कदर मुहतात रहना चाहिए। आज देखो क्या हाल है हमारे समाज का। मेरे भाइयों, मस्जिदों के काम है, बहुत टटोल टटोल करके हम पैसे बाहर निकालते, इल्ला माशाअल्लाह। और मदरसों के काम है, दीन का काम, दावत का काम, गुरबा का, फुकरा का, मसाकीन का, बहुत टटोल के, लेकिन दुनिया में नाम है, शोहरत, शादियां देखो, शादियां मुसलमानों की, अल्लाहु अकबर, मगनी में ही लाखों पहले खर्च हो जाते हैं। किससे पूछा है, किससे पूछा है? माल आपका नहीं, हमारा नहीं, माउल रब्बे जुल जलाल का है, जिसने दिया भी है, बताया भी है कहां कितना कब कैसे खर्च करना है। हमने तसर्रुफ कर दिया मनमानी। इन्नल्लज़ीना यतखव्वदूना फी मालिल्लाहि बिगैरि हक़, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के माल में नाहक तसर्रुफ करते हैं, लहुमुल नार यौमुल क़ियामह, वो क़ियामत के दिन जहन्नम की आग में जलाए जाए। बस मेरे भाई, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको माल के फितने को समझने की तौफीक अता फरमाए, और इधर उधर नहीं, अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ के, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ के, सहाबे किराम की सीरत पढ़ करके इधर उधर मशरिक मगरिब शमाल जुनूब मत देखो, अपने नफ्स की तरफ देखो, अपनी जात की तरफ देखो, देखो अपना कारोबार कैसा, देखो अपना अमल कैसा, देखो कहां से कमा रहे हो, देखो कहां कहां खर्च कर रहे हो। वो इनकम का रास्ता कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, वो खर्च करने का रास्ता अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत और सहाबा की सीरत के मुताबिक है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा काम है। हम दूसरों को देख के तबसरे जरूर करते, अपनी जात का मुहासबा करके अपनी जात को सबसे ज्यादा मलामत करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मलामत कल हमें क़यामत के दिन सुरखरुई अता फरमाने का जरिया बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।